وقت میں کام کتنا کرتے ہیں، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہاتھ سے گھر کا کام کرتے ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، ان کے پاس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے، ماں۔ خالی شعر سنیے گا، تقریر سنیے تب بھی جانکاری حاصل ہوگی۔ دل نعت جب سنا رہے تھے تو دل باغ باغ ہو رہا تھا، جی تو یہی چاہتا تھا کہ رات بھر سناتے تو میں نہ نہیں کہتا، لیکن گھر والے کا اشارہ بار بار ہو رہا تھا، میں مجبور ہو گیا تھا، کیا کروں، اس لیے حضرت کو رخصت کرنا پڑا۔ لیکن ابھی رخصت نہیں ہوئے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے، انشاءاللہ ایک چکر پھر میں چلاؤں گا آخر میں۔ تیار ہے نا؟ کہیے سبحان اللہ۔ ام المومنین تمام مومنوں کی ماں اور حضرت فاطمہ الزہرا دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، اے فاطمہ تم افضل ہو کہ ہم افضل ہیں؟ بات غور سے سنیے گا، تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی کہ ام المومنین افضل تو میں ہوں، بولیے نا سبحان اللہ، افضل میں ہوں۔ فاطمہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے۔ حضرت ام المومنین اس وقت عورتوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والے حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ کہنے لگی، اے فاطمہ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ فاطمہ کہنے لگی، اے ام المومنین افضل تو میں ہوں۔ حضرت عائشہ پوچھنے لگی، بتا تو افضل کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی، اے عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے افضل ہے، تمام نبیوں میں افضل، تمام امتیوں میں افضل، پوری کائنات میں افضل۔ اللہ نے اپنے بعد سب سے افضل کسی کو بنایا ہے تو وہ نبی کون و مکان ہے، رسولوں کے سردار ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بتاؤ جو نبی افضل ان کا ٹکڑا بھی افضل۔ فاطمہ الزہرا جب کہنے لگی کہ نبی افضل ان کا ٹکڑا بھی افضل، تو ان کا ٹکڑا تو میں ہوں، اس لیے میں تم سے افضل ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، اے فاطمہ ہم آج زندہ ہیں، ہم دنیا میں ہیں، تو بھی دنیا میں ہے، ایک دن موت آئے گی، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے فاطمہ پھر ایک دن ایسا آئے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اے فاطمہ حساب و کتاب ہونے کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے، تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گی، تو نبی تمام نبیوں سے افضل، پوری کائنات میں سب سے افضل تو میں نبی کی بیوی ہوں۔ جہاں نبی ہوں گے وہاں میں ہوں گی، جہاں علی ہوں گے وہاں تو ہوگی، جہاں نبی ہوں گے وہاں میں ہوں گی، جہاں علی ہوں گے وہاں تو ہوگی۔ تو بتا افضل کون ہوئے؟ جنت میں سب سے افضل جو مقام ہے، جنت میں سب سے افضل جو جگہ ہے، وہاں تمام نبیوں کے سردار ہوں گے اور وہاں میں بھی ہوں گی، اور جہاں علی ہوں گے وہاں تو بھی رہے گی، تو افضل تو کیسے؟ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ کا چہرہ مرجھا گیا، حضرت فاطمہ غمگین ہو گئے، حضرت فاطمہ کا چہرہ حضرت عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہے کہ فاطمہ کا چہرہ اس آواز کو سن کر، اس جواب کو سن کر مرجھا گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فوراً حضرت فاطمہ کے سر کا ایک بال پکڑ لیتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے فاطمہ تیرے مقام کو کوئی سوچ کیا سکتا ہے، تیرے مقام کو کوئی پا کیا سکتا ہے؟ عائشہ کا تمنا ہے کہ فاطمہ کے سر کا ایک بال بن جائے۔ عائشہ
फातिमा, आयशा की तमन्ना है कि तेरे सर का एक बाल आयशा को बना दिया जाए। तो मेरे दोस्तों समझो फातिमा का मकाम क्या है, फातिमा का मर्तबा क्या है। वो फातिमा जो तमाम औरतों का सरदार है, तमाम जन्नती औरतों का सरदार हजरत फातिमा ज़हरा है। वो फातिमा जब शादी हुई है, जिनका निकाह से अल्लाह भी राजी, मुस्तफ़ा भी राजी, अली भी राजी, और उन्हीं के गोद में हसन हुसैन जन्म लेते हैं। और इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाकर नाना के दीन को बचाकर उम्मत को दे दिया। या रसूल अल्लाह, नूर ही नूर, नूर का चेहरा, उस चादर को याद कीजिए जिसके बारे में मैंने बताया कि 5 शख्स उस चादर के नीचे है। और शेर सुनिए, नूर ही नूर, नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने करबला में गुरूर का चेहरा। ऐ मेरे दोस्तों, हजरत अली असगर भी उसी खानदान का बच्चा है जो इस्लाम को बचाते बचाते अपनी जान तो दे दिए, लेकिन इस्लाम को झुकने नहीं दिए, इस्लाम का परचम झुकने नहीं दिए। एक नन्हे अली असगर ने इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। आज मस्जिद आपके सामने है ना, आपका रुख जिधर है उधर ही मस्जिद मदीना है, और उधर ही मस्जिद हराम भी है, उधर ही खाने काबा भी है। नाम देखे मेरे दोस्तों कैसा मिला है। आपका रुख है मदीना मस्जिद के तरफ, और आगे बढ़िए आपका रुख हो जाएगा किधर? सुभान अल्लाह, बच्चा बच्चा जानता है। अरे इस घर को कोई संभाल क्या सकता है? शायर कहते हैं, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। फैसला आप ही कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आपका रुख किधर है? बस आपके रुख के हिसाब से मैं आज तकरीर करूंगा। जो चीज बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बिल्कुल सेट हो चुका है वो जुमला। आपका रुख है आपके मस्जिद की तरफ। आपके मस्जिद का नाम क्या है? मदीना मस्जिद। नजर और आगे बढ़ाएंगे तो नजर आने लगेगी मस्जिद हराम, और गौर करेंगे तो खाने काबा के तरफ आपका रुख है, और गौर करेंगे तो गुंबदे खजरा। दुआ मांगते हैं ना, सलाम फिरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज से फारिग होते हैं, आपका इमाम जो भी है फौरन गुंबदे खजरा के तरफ घूम जाते हैं, यानी सबूत देते हैं कि परवरदिगार, हम तो तेरे घर काबा के तरफ रुख करके नमाज पढ़ लिया है मौला, इस नमाज को काबिल कबूल बना दे गुंबदे खजरा के सदके में। तो आपका रुख किधर है? अरे इस मस्जिद का नाम क्या है जानते हैं? इसमें चंदा आप लोग दिए थे? हमको तो नहीं लगता है चंदा दिए हैं। कितने लोग नहीं दिए जरा बताइए तो? बाप रे बाप, इतने लोग चंदा दिए हैं, लेकिन फजर की नमाज में जानते हैं हजरत 20 आदमी। चंदा देने वाले 1 लाख है, से ज्यादा है ना? सुभान अल्लाह। क्योंकि भाई मैं तो आगे रहता हूँ, अब पीछे क्या होता मैं देखता नहीं।
देखिए हजरत, जरा गौर से उधर भी देखिए, वहां से लेके यहाँ तक सारे लोग चंदा दिए हैं और सब मेहनत किया है अपना तन मन धन से। वो आप अपना एक शेर पढ़ते हैं ना, तन मन धन वाला, आला हजरत फरमाते हैं तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे चला जाना। तो चंदा दिए आप, नमाज पढ़ेगा कौन? कौन? मेरे दोस्तों, चंदा दिए हो, मस्जिद बनाए हो, कोई बरका तीर नहीं मारे हो। अल्लाह फरमाता है ऐ मुसलमानों, तुम पर 4 चीजें फर्ज की गई। मैं आऊंगा शादी के ताल्लुक से इंशाअल्लाह। मैंने कहा है ना 3 घंटा आज लूंगा, अभी तो आधा घंटा हुआ है, अभी मसला समझा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आज मैं आऊंगा, शादी के ताल्लुक से भी बात होगी। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मुसलमानों, तुम पर 4 चीजें फर्ज की गई, इनमें से अगर तुम 3 को अदा करोगे, 1 छोड़ दोगे तो ये 3 तुम्हारी बेकार हो जाएगी, ये 3 तुम्हारा रद्द कर दिया जाएगा। वो 4 चीज क्या है जरा देखे, मैं भी बता दूं या आप भी बता दे कि वो 4 चीज क्या है। इधर वाले बोले नंबर 1 पहला क्या है? अब आप लोग चुप रहिए। दूसरा क्या है? तौहीद, रोजा। रोजा। तीसरा इधर वाले बोलिए, चौथा मैं बोलूंगा ज़कात। चौथा मैं बोल दूं? मैं क्या बोलूं, स्टेज पे जलवा अफरोज है। हज, अल्लाह ने इनके हज को अगर कबूल फरमा लिया तो जानते हैं, और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए। ऐसे शख्स की अगर एक हज कबूल होती है तो अल्लाह ताला इनके सदके में 400 लोगों की मगफिरत फरमा देगा। तो ये 400 लोग कौन होंगे? हम ही लोग ना होंगे? अरे मोहब्बत हम लोगों से ना है, उठना बैठना हम लोगों के साथ है, तो बीरमपुर में ध्यान देंगे, आएगी बात तो ध्यान देंगे कायम नगर पर। 4 चीजें फर्ज है। नंबर 1 नमाज, रोजा, हज, ज़कात। एक इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज भी करता है, ज़कात नहीं देता तो हज बेकार, नमाज बेकार, सजदा बेकार, और क्या, हज भी बेकार, रोजा भी बेकार, भूखा रहना भी बेकार। तो अल्लाह फरमाता है ऐ मुसलमानों, तुम पर 4 चीजें फर्ज की गई है, इन 4 को अपने जान से ज्यादा मानो। मानेंगे ना? ज़कात देंगे? ज़कात क्या सोचते हैं कि रमजान का महीना आया, ज़कात निकाले दे दिए, ज़कात है? ज़कात कोई खैरात का नाम नहीं है, फर्ज है, फर्ज। जैसे नमाज फर्ज है वैसे रोजा फर्ज है, और जैसे रोजा फर्ज है वैसे ज़कात भी फर्ज है। मेरे दोस्तों, आप खेती करते हैं, आप किसान हैं, मजदूरी करते हैं, इस दौर में लगभग हजरत 100 में 98 आदमी पर ज़कात फर्ज है ना? लेकिन फिर भी गरीब के बच्चे जैसे 20 साल पहले था, 50 साल पहले था, वैसे आज भी हमारे सामने है। क्यों है? आप अगर कोशिश करते तो वह गरीब का बच्चा आज गरीब नहीं रहता, वो भी ज़कात देते हुए नजर आता। लेकिन तवज्जो नहीं करते हैं। ज़कात का माल हो या कोई भी माल हो, खाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों जानते हो, बगैर ज़कात निकाले हुए खाओगे तो क्या होगा? वो हराम हो जाएगा, हराम। तो 4 चीजों को अपनाइए। नंबर 1 रोजा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 हज, नंबर 4 ज़कात। इन 4 पर अमल कीजिए। मेरे दोस्तों, 2 चीजें तो बहुत आसान है, रोजा भी और नमाज भी। और अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो ज़कात भी, और दौलत दिया तो हज भी। अमीर बनने चले हैं और ज़कात कौन देगा? अमीर बनने चले हैं, हज कौन करेगा? वरना गरीब बन के रहो, सिर्फ नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो। अमीर बनना है तो 2 काम आगे करना होगा।
وہ کیا کہ زکات اور حج، اور اگر نہیں کرنا ہے تو غریب بن کے رہو، کوئی مطالبہ نہیں کرے گا کہ زکات دو۔ اگر زکات نہیں دیں گے یہی مال کل بروز محشر سانپ بن کے آئے گا، یہی مال دوزخ کی آنکھ میں گرم کیا جائے گا، بالکل لال سرخ ہو جائے گی، اس کو آپ کے پیشانی پہ داغا جائے گا، کبھی پشت پہ داغا جائے گا، کبھی گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ تو زکات نکالیے ورنہ اپنے ہی مال میں خود پھنس جائیں گے۔ زکات، روزہ، حج، نماز پڑھتے رہیے۔ پھر آئیے، میں جہاں سے بات شروع کیا چھوڑا تھا وہیں پہ آئیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کیا کہنے لگی کہ اے فاطمہ، تیرے مقام کو کوئی سوچ کیا سکتا ہے؟ عائشہ کی تمنا ہے کہ تیرے سر کا ایک بال عائشہ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہی فاطمہ سسرال گئی ہے، کچھ دن کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ کہاں گئے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر۔ تو میرے نبی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کا چہرہ اداس ہے، چہرہ مرجھا ہوا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ چہرہ کیوں اداس ہے؟ تو فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، جس دن سے آپ کے گھر سے علی کے گھر آئی ہوں میرے آقا، فاطمہ 4 دن سے بھوکی پیاسی ہے۔ آج کی عورت، آج کی ماں بہن اگر سسرال جائے، ایک ٹائم اگر کھانا نہ ملے تو پتہ نہیں اپنے نہیر کی پورے گاؤں کو اٹھا کے سسرال لا جائے گی، کیس مقدمہ سب ہو جائے گا۔ لیکن وہ فاطمہ ہے، ایسے ہی نہیں، تمام جنتی عورتوں کا سردار بنایا گیا۔ فاطمہ کا وقار سمجھیے، فاطمہ کی اہمیت سمجھیے، فاطمہ کا مرتبہ دیکھیے کہ سسرال آئی ہے، 4 دن سے بھوکی پیاسی ہے، لیکن شکوہ نہیں کرتی زبان سے۔ کچھ دن کے بعد پھر فاطمہ کے گھر میرے نبی تشریف لاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ موجود ہے، علی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات بتانے میں جا رہا ہوں، غور سے دھیان سے سنیے۔ میرے نبی جب تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ تو ہے لیکن علی موجود نہیں ہے۔ میرے نبی پوچھ دیے، فرماتے ہیں اے فاطمہ علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علی سے اور مجھ سے کچھ انبن ہو گیا ہے، کچھ انبن ہو گئی ہے، علی گھر سے باہر چلے گئے۔ آج کا باپ بیٹی کے گھر آتا ہے تو بیٹی پورے دن، پورے زندگی کی کہانی اپنے باپ کے سامنے رکھ دیتی ہے، لیکن وہ بھی تو بیٹی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ کچھ بات ہو گئی ہے، علی گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ علی کو ڈھونڈو، علی کہاں ہے؟ گاؤں میں تلاش کیا گیا، محلے میں تلاش کیا گیا، گلی میں دیکھا گیا، علی نہیں مل پایا۔ تو صحابہ مسجد نبوی شریف میں چلے گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ خبر میرے نبی کو آ کے دی، صحابہ عرض کی یا رسول اللہ علی جو ہے مسجد نبوی شریف میں لیٹے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کم ابا ترا، اے مٹی کے باپ اٹھ۔ حضرت علی اتنا سننا تھا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ علی نہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ سے جھگڑا ہو گیا اس لیے میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، نہ فاطمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ علی نے مجھے پریشان کیا ہے، علی نے مجھے ایسا ایسا کہا۔ کوئی نہیں کہا ہے۔ میرے دوستو آج
अगर शोहर और बीवी में झगड़ा हो जाए तो फातिमा का किरदार अपनाइए और अली का जिगर अपनाइए। जब मर्द अपने अली का जिगर अपना लेंगे, औरत फातिमा जैसी सब्र पैदा कर लेगी तो उजड़ता हुआ घर में बाहर आ जाएगी, गुलाब का फूल खिलने लगेगा। तो मेरे दोस्तों, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कुछ दिन गुजरता है, हजरत अली फातिमा की चौखट पे आते हैं और अर्ज करते हैं, ए फातिमा, जब से शादी हुई है आज तक तुम मुझसे कभी किसी चीज का सवाल नहीं किया, किसी चीज को मांगी नहीं। आज अपने घर में फातिमा के इस किरदार को सुना दीजिएगा। काश आपके घर में, हमारे घर में फातिमा की कनीज अगर आज होती तो इस्लाम हमारा घर में भी चमकता और मस्जिद के मीनार और मेहराब में भी चमकता। मेरे दोस्तों, आज सबके घर में सबकी बीवी फरमाइश करती है, लेकिन फातिमा है पूरी दुनिया में एक अकेली खातून है जो कभी अपने शोहर से फरमाइश नहीं किया है। यह अकेली जात है कि अपने शोहर से कोई फरमाइश नहीं करती है। अली आ गए, कहने लगे, फातिमा, जब से शादी हुई है आज तक तुमने कोई फरमाइश नहीं की। मैं चाहता हूं कि आज तुम कोई फरमाइश करो। क्या करो? आज तुम मुझसे कोई फरमाइश करो। हजरत फातिमा कहने लगी, हुजूर जैसे है वैसे रहने दीजिए, मैं आपसे बहुत खुश हूं। मैं आज आपसे बहुत खुश हूं। आज की बीवी अगर सोने का हार भी लाके दीजिएगा ना तो खुश नहीं होगी। क्यों? कि बीवियों के अंदर दूसरे को देखने की आदत है कि फलानी की बीवी के कान में ऐसा झुमका है, फलानी के बीवी के नाक में ऐसा नोट है, पैर में ऐसा पाजेब है, हमें भी चाहिए। ये नहीं देखेगी कि मेरा शौहर है, क्या कमाता है, क्या लेके आता है, कुछ नहीं देखेगी। फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश। लेकिन फातिमा कहती है, हुजूर जैसे है वैसे रहने दीजिए, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। लेकिन अली कहते हैं, नहीं फातिमा, आज तो फरमाइश करना ही होगा। तो हजरत अली हजरत फातिमा कहने लगी, हुजूर जब आप कहते हैं तो आपके कहने के मुताबिक, आपके इसरार करने के मुताबिक, आपके जिद करने के मुताबिक मैं आपसे सवाल करती हूँ, लेकिन अपनी ख्वाहिश इसमें नहीं है, अपनी मर्जी शामिल नहीं है, वो तो आपको राजी करने के लिए कर रही हूँ। मुझे अनार खाने का मन कर रहा है। क्या मन किया? अनार। हजरत अली कहने लगे, हाँ ए फातिमा, बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, तुमने तो फरमाइश की है, मैं अभी अनार लेके आता हूँ। वहाँ से एक कदम पीछे हटे, जेब में हाथ डाले तो 1 रुपया नहीं, ना कोई दिरहम है, ना कोई रुपया है, ना धन है, ना दौलत है, जेब में कुछ नहीं है। अब हजरत अली करे तो क्या करे? एक तो वादा जबरन करवाए, खुद से फातिमा मांगी नहीं, जबरदस्ती कहलवाया गया। अब फातिमा कहती है, हुजूर मुझे अनार खाने का मन करता है, मैं अनार खाऊंगी। ये फातिमा का जुमला है कि मैं अनार खाना चाहती हूँ। लेकिन अली जेब में हाथ डालते हैं, कोई दिरहम नहीं है, कोई रुपया पैसा नहीं है। अब अनार लाए तो कहाँ से? हजरत अली घर से बाहर निकलते, जाके क्या करने लगे? मजदूरी। कौन अली है जानते हैं? जिनको खैबर, बाबे खैबर कहा जाता है, जिनको औलियाओं का सरदार कहा गया, जिनको इल्म का दरवाजा कहा गया, जिनको फातह खैबर लकब है। आज अगर हमारे जैसा मौलवी, हमारे जैसा हाफिज, इनके जैसा शायर अगर 5000 का कपड़ा ले, पोटली बना के साइकिल के क्लियर पे रखे और गांव गांव चिल्लाते घूमे कि कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, तो आप ही में से कोई कहेंगे कि गया शायर साहब काम से।
फलाने के मिलाद में आया था, बड़ी जोर जोर से नात पढ़ रहा था, गया काम से, अब गया, इनकी अब कोई कीमत नहीं रही, इनकी खटिया खड़ी हो गई। अब तो मौलवी कपड़ा बेचने लगा, शायर कपड़ा बेचने लगा, हाफिज कपड़ा बेचने लगा, इमाम कपड़ा बेचने लगा। अब इनके अंदर कुछ नहीं है, इनकी इमामत भी खटिया खड़ी हो गई, इनकी शायर बना भी खत्म हो गया, इनकी आवाज में पता नहीं क्या हुआ। अब ये कपड़ा का कारोबार शुरू किया, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो। लेकिन मेरे दोस्तों, इस्लाम का तरीका, तिजारत का तरीका किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया। गैर आलिम को तिजारत करने का हक नहीं है, इसलिए कि आम आदमी तिजारत कीजिएगा, पता नहीं चलेगा कौन क्या है, कैसे बेचे, किस पैसा को क्या करे, किसका ज़कात निकाले, किसका खैरात करे, किसको सदका करे, पता नहीं चलेगा। आप क्या समझते हैं तिजारत करना कोई दाल बात है कि सारा वाला नीचे अच्छा वाला ऊपर 70 रुपया किलो चिल्ला के बेच दिया, ये तिजारत है? नहीं, तिजारत के लिए इल्म दीन होना जरूरी है। बगैर इल्म दीन का आप तिजारत कर नहीं सकते हैं। तिजारत कीजिएगा, फंस जाइएगा, अच्छा वाला ऊपर होगा, सड़ा हुआ नीचे होगा, सबको 70 रुपए किलो के हिसाब से बेच देंगे। अब इसका हिसाब कौन देगा? लोग खरीदा है, अच्छा देख के खरीदा है, उम्दा देख के खरीदा है, लेकिन घर जाके खोला तो 5 अच्छा है और 2 उसमें सड़ा हुआ है। तो तिजारत करने के लिए, अरे बोलिए ना, तिजारत समझते हैं? दुकानदारी कहिए ना, बेचना खरीदना कहिए ना। बेचने खरीदने के लिए इल्म होना जरूरी है। अगर कोई मौलवी, कोई हाफिज, कोई इमाम अगर कोई तिजारत करता है, वो गलत नहीं करता है, वो बिल्कुल सही करता है, इसलिए कि असल हक उसी को है तिजारत करने का। सबसे बड़ा शख्स, मेरे नबी का सबसे बड़ा गुलाम कौन है जानते हैं? सबसे बड़ा आशिक कौन है? सबसे बड़ा गुलाम कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर। इनका क्या कारोबार था? जिनको नबी ने अपना साथी बनाया, क्या बनाया? साथी, यार बनाया, दोस्त बनाया, उनका नाम है हजरत सिद्दीक अकबर। अब इनका काम क्या है? कपड़े को एक गठरी में बांधना और गली गली घूम के बेचना। ये तो हम लोगों ने इस काम को इतना 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 बढ़ा दिया कि आज मौलवी की कोई हैसियत नहीं रहा, इमामों की कोई अहमियत नहीं रही। अगर इमाम काम करे तो वो गलत, आप करे तो सही। नहीं मेरे दोस्तों, इमाम जो करता है, मौलवी जो करता है, हाफिज जो करता है, वो पहले सही है। आपके सही को जांचा जाएगा, मौलवियों के सही को जांचा नहीं जाएगा। आप तिजारत करेंगे तो जो दुबला पतला माल है, जो कंडम है, उसको बोरा के बीच में घुसाएंगे। क्यों? कि आपको घाटा ना लगे, आपको नफा हो और वो माल अच्छे कीमत में बिक जाए, यही ना मकसद होता है। लेकिन इल्म होता तो ऐसा नहीं करते। मेरे नबी फरमाते हैं तिजारत करो तो सामान वही बेचो जो ऊपर रखे हो, वैसा ही माल नीचे रखो। आप जानेंगे तब ना, जानते हैं ये नहीं है। माल लेके आए, सेब लेके आए, चिल्ला के बेचे, सारा वाला नीचे, अच्छा वाला ऊपर, 70 रुपया किलो, ले लो भाई ले लो, 70 रुपया किलो। और घर ले गया, 1 किलो सेब ले गया, उसमें 8 सेब चढ़ा है, 8 में से 5 अच्छा, 3 निकल गया दागी। अब जो 70 रुपया उससे लिया, बताओ ये हराम है कि हलाल है? आपका सेब भी गया, पैसा भी आया तो हराम आया, हराम। ये पैसा हलाल नहीं होगा, इसलिए कि आपने ग्राहक को ठगा है। तो तिजारत कीजिए,
तिजारत में बहुत बरकत है, बहुत फायदा है, लेकिन जो सही तिजारत कीजिए, जो सिद्दीक़ अकबर ने किया है, उमर फारूक ने किया है। मेरे दोस्तों, सिद्दीक़ अकबर जिस माल को बेचते थे वही माल ऊपर भी रखते थे, वही नीचे भी रखते हैं। अरे जिनके मसलक पर हम चलते हैं उनका नाम जानते हैं? क्या नाम है? अरे जिनके मसलो मसाइल को हम मानते हैं और लेके कदम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, उनका नाम क्या है? इमाम आज़म अबू हनीफा। देखिए तिजारत करने का हक किसको है? इस वाक़े से गौर कीजिएगा और ज़हन में बसाइएगा कि तिजारत करने का सही तरीका क्या है। इमाम आज़म अबू हनीफा, जो तमाम सुन्नियों का इमाम, जिनके मसलक को लेके हम लोग चलते हैं, वज़ू में ये तरीका, नमाज में ये तरीका बताया किसने? इमाम आज़म ने। कहे लोगों ऐसे वज़ू करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वज़ू करने का हुक्म दिया है, ऐसे नमाज पढ़ो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ा करते थे। तो तमाम मसलक को बताने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा ये काम क्या करते थे? कपड़े का दुकानदारी था। अचानक एक दिन आसमान पर बादल छाया, अंधेरी हुई, लोग अपने अपने दुकान पे लाइटें जलाए, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा अपने दुकान को बंद कर दिए। बगल वालों ने पूछा, ए इमाम आज़म अबू हनीफा, अभी तो सूरज नहीं डूबा है, अभी मगरिब का वक्त अभी नहीं हुआ है, अभी तो असर की नमाज हुई है, आपने तो असर की नमाज अदा कर ली है, लेकिन मेरे आका आपने दुकान को आज इतना पहले क्यों बंद कर दिया? हजरत इमाम आज़म जवाब देते हैं, ऐ लोगों सुनो, अभी आसमान पे बादल छाई है, अंधेरा हुआ है, लोग अपने दुकान पे लाइटें जलाए हैं, हम भी अगर लाइटें जलाएंगे ग्राहक आएगा, कपड़ा खरीदेगा, इस लाइट की रोशनी से कम कीमत वाली कपड़ा जो है वो खूबसूरत दिखाई देगा और वह ग्राहक जो है अच्छे कीमत दे करके मुझसे खरीद लेगा। लेकिन जब ये दिन के उजाले में देखेगा तो ये कपड़ा खूबसूरत नहीं बदसूरत दिखाई देगा। इमाम आज़म का कौल सुनिए, वो फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ये जो बगल के दुकान में लाइटें लगी है वो तो अपने कपड़े को ज्यादा कीमत दे करके बेच लेंगे और ग्राहक खरीद भी लेगा। वही काम अगर मैं भी करता, अपने दुकान में लाइटें जलाता, लोग खरीदने आते, अच्छी कम कीमत की कपड़ा को लोग खूबसूरत देख के खरीद लेते, लेकिन जब कल का सूरज निकलता यही कपड़ा कल के सूरज के उजाले में खूबसूरत नहीं बदसूरत दिखाई देता। तो जो कपड़ा लाइट के उजाले में खूबसूरती का नाम देके अगर मैं बेच देता तो वो पैसा मेरा हलाल का नहीं हराम का होता। आज अक्सर दुकानों में हजरत, अक्सर दुकानों में, चाहे वो कपड़े का हो, अनाज का हो, फॉर्चून का हो, टिकली पाउडर अलता किसी का हो, हर दुकान में एक लाइट से काम चल सकता है, दो से चल सकता है, या नहीं तो चार कोना में चार, क्योंकि जनाजा जब निकलेगा ना तो चारे आदमी चार कोना में होगा। उस वक्त का ख्याल कीजिए जब जनाजा आपका निकल आ जाएगा, मेरी जनाजा निकलेगी, चार ही आदमी कंधा देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अगर लगाना है दुकान में 4 लाइटें लगाओ। आज अक्सर दुकान में 10-10, 20-20 लाइटें इसलिए लगाया जाता है कि कंडम सामान को खूबसूरती में दिखाकर अच्छे कीमत इसका वसूल किया जाए। तो मेरे दोस्तों, ये कम कीमत के सामान को खूबसूरत बताकर और दिखाकर जो तुम बेचते हो, कल अगर उस ग्राहक के दिल को ठेस पहुंच जाएगा, आपका ये लाइट भी लगाना हराम हो जाएगा और उससे जो पैसा मिलेगा, जो मुनाफा होगा वो भी हराम होगा और उसकी कीमत लेके जो पैसा आप खाएंगे, अनाज खाएंगे, वो भी हराम हो जाएगा।
इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने दुकान को इसलिए बंद किया है ताकि लोग कम कीमत की सामान को ज्यादा कीमत देकर या अच्छा देखकर खरीद ना ले, ताकि मैं गुनहगार ना बन जाऊं। गुनाह से बचने के लिए हमने अपने दुकान को बंद कर दिया है। आज हम दुकान में लाइटें लगाते हैं, नीयत यह है कि लोग हमारे सामान को अच्छा कहेंगे और हम उसको ठगेंगे और वो पैसा लेके हम बहुत अमीर हो जाएंगे, मालदार हो जाएंगे। तो मालदार होके किधर तीर मार दीजिएगा। ज़कात का मसला गला में फांसी का फंदा बन के आएगा। इधर तो ठग लिया, लेकिन बचोगे कहां तक? ज़कात का मसला अपनी किताबों से बाहर आएगी और गले में फांसी का फंदा जैसा अटक जाएगा आके और कहेगा, अरे तूने बहुत कमाया है, बहुत दौलत जमा किया है, अब 100 में 2.5 रुपया दो, लाख में 2,500 रुपया दो, गरीबों में बांटो। उस वक्त अगर नहीं बांटोगे, यही रुपया कल बरोज़े महशर सांप बन के आएगा, बिच्छू बन के आएगा, लोहा की तपती हुई जंजीरें बन के आएगी और गले में पहना दिया जाएगा, कभी टसा जाएगा, कभी पेशानी पे ताक दी जाएगी। अमीर भी बनोगे तो बचोगे नहीं। अमीर अगर बनना है, जायज दौलत से बनो। मैं मना नहीं करता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि आप गरीब बन के रहिए, बेशक अमीर बनिए, लेकिन उसका ख्याल करके कि हम जब कब्र में जाएंगे तो क्या होगा, हश्र में जाएंगे तो क्या होगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक दौलत का हिसाब देना होगा, एक एक रुपया का हिसाब देना होगा। कितना कमाया, किसको ठगा, किसको नहीं ठगा, कौन सा माल कैसे आया, वहां जाके हिसाब देना होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं क्या कर रहा था, हजरत अली मुश्किल कुशा जो तमाम वलियों का सरदार है, क्या है बोलिए आप भी? वलियों के सरदार। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत कम है, बस मुख्तसर सुनिए। मैं जो सोचा था अब मैं वो बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कि वक्त नहीं है। हजरत अली तमाम औलियाओं का सरदार गए हैं मजदूरी करने। मेरे दोस्तों, अगर मेरा पीर भी मजदूरी करेगा तो मैं फख्र महसूस करूंगा, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है, फारूक आज़म की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है, इमाम आज़म की सुन्नत है। तिजारत करो, फारूक आज़म का किरदार देखो, तिजारत करो, सिद्दीक़ अकबर का उसूल को देखो, तिजारत करो, इमाम आज़म अबू हनीफा का किरदार अपना के करो, तो यकीनन मेरे दोस्तों उस तिजारत में भी मुनाफा होगा और आपका बेड़ा यहाँ भी पार होगा, वहाँ भी पार होगा। आसानी के साथ जिंदगी यहाँ भी गुजरेगी और आसानी के साथ वहाँ भी मंजिल पार हो जाएगा। मौला अली कहाँ गए? तिजारत करने। जो तमाम सैयदों का सरदार है ना हजरत, तमाम वलियों का सरदार, फातह खैबर अली मुश्किल कुशा कहाँ गए? मजदूरी करने। मजदूरी किए सुबह से शाम तक, दूसरे कहाँ मजदूरी किए, जो पैसा मिला जेब में रखे, चले गए कहाँ? बाजार। समझ रहे हैं? बाजार गए और एक से एक अनार खरीदे। मेरे दोस्तों, उस वक्त पैसे की बहुत किल्लत थी। उस वक्त चवन्नी, अठन्नी, एक आना, दो आना, 10 पैसा, 20 पैसा चलता था, है ना? तो जब हम सब के दौर में 10 पैसा, 20 पैसा, एक अन्नी, 2 अन्नी, 8 अन्नी, 54 था, तो उस दौर का क्या हाल होगा? हजरत अली मजदूरी किए पूरे दिन, पैसा मिला जेब में रखे, दिरहम को जेब में रखे और पूरे दिरहम का जाके अनार खरीदे और लेके चले हैं। रास्ते में एक भिखारी मिल गए,
रास्ते में एक फकीर मिल गए, कहने लगे "ए शख्स, अल्लाह के नाम पे दे दो"। हजरत अली तरफ गए कि ओह, मेरे अल्लाह के नाम से इन्होंने मांगा है, ये अली एक अनार तो क्या, अली की जान भी अगर अल्लाह के नाम लेके कोई मांगेगा तो अली जान दे देगा। सवाल हुआ, एक अनार अली के जेब में है, सवाल होता है अल्लाह के नाम पे दे दे। हजरत अली करीब गए, अब पूछने लगे ए बाबा बता क्या मतलब है, कब से यहाँ बैठे हो? उन्होंने कहा हुजूर मैं तो 2 दिन से बैठा हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगता हूँ, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे लोग हैं यहाँ के, लेकिन आप कितने अच्छे हैं कि मेरे खबर लेने आ गए। हजरत अली कहने लगे बता क्या मकसद है? वो शख्स ने कहा, उस साइल ने कहा, मांगने वालों ने कहा कि मुझे अनार खाने का मन करता है। देखिए मेरे दोस्तों, एक ही अनार है, पूरे दिन मजदूरी किए, एक अनार खरीदे। इधर फातिमा का सवाल है कि मैं अनार खाऊंगी, इधर बीच में सवाल फकीर कर रहे हैं, साइल कर रहे हैं कि मुझे अनार खाने का मन करता है। हजरत अली सोचने लगे वो तो फातिमा है, नबी की बेटी है और मेरी बीवी है, उसे मैं मना लूंगा, इसको मैं कैसे मनाऊं? चलो अनार मैं इसको दे देता हूं। हजरत अली उसको अनार दे देते हैं, वो फकीर दुआ देते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा भला करे, कोई मुझे पूछने वाला नहीं था, आज आप मुझे पूछ लिया है, अल्लाह आपका भला करे, आपके हर मुराद को पूरी कर दे। मेरे दोस्तों, हजरत अली वहां से चले हैं, इधर दरवाजे पर फातिमा खड़ी है, सेब के इंतजार, अनार के इंतजार में। मेरे दोस्तों, कभी कोई साहिल अगर सवाल कर दे, सुभान अल्लाह, ये देखिए 1-2 बार और आइए आप, ये लड़के का बाप है, आप लोग क्या है? लड़के का बाप तो आप लोग भी है, फर्क इतना है कि वो दूल्हे का बाप है, आप लड़के का बाप है। अरे आपके घर में लड़का है ना, अल्लाह ने दिया है ना, ये बहुत बड़ी नियामत है, तो बोलते क्यों नहीं है? लड़के का बाप हुए ना, वो दूल्हे का बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी साइल सवाल करे, जितना जल्द हो सके, ये जरूरी नहीं कि 1 लाख दे, 2 लाख दे, जो जेब में है 58-54, 1 रुपया 2 रुपया आप खैरात कीजिए। पता नहीं कौन साइल किस सवाल लेके आया है, किसकी मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका इम्तिहान लेने के लिए कोई आया हो। हजरत अली के सामने वो साइल आया था, हकीकत में वो साइल नहीं था, इम्तिहान था अली का कि अली देखे क्या करता है। तो हो सकता है जब अली का इम्तिहान लिया जा सकता है तो आपका भी लिया जाएगा, हमारा भी लिया जाएगा। मेरे दोस्तों, साइल कभी सवाल करे, जो भी जेब में है दे दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब दीजिए, आप 1 रुपया देंगे उसकी भला होगी, आप 2 रुपया देंगे उसकी मदद होगी, जो हो सके वो अता कर दीजिए। साहिल को कभी ठुकराइए मत, जो आपको हो सके, जो भी समझ में आए वो दीजिए। अब हजरत अली वहां से आगे बढ़ते हैं, इधर फातिमा दरवाजे पर खड़ी है। अब अली आ रहे हैं, दिल में ख्याल है कि फातिमा को क्या जवाब दूंगा। एक तो कभी मांगी नहीं थी, मैंने जबरदस्ती मंगवाया। मेरे दोस्तों, एक मेहमान आता है, अगर वो रहना ना चाहे और कहे कि मैं आया, यूं ही आया, मुलाकात किया, मैं जा रहा हूं, तो आप कहेंगे नहीं खाना खा के जाइए, खाना खा के जाइए। बार बार आप जिद करेंगे, वो मजबूरन रह जाएंगे। तो आप उसको क्या खिलाइएगा? अच्छा से अच्छा मीट मछली जो भी हो सके। क्यों? कि उसको मैंने जबरदस्ती रुकवाया, वो मेरे यहाँ खाने नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती रोका है। अब उसका इंतजाम भी मेरे यहाँ से करना होगा।
अब अली कहते हैं कि फातिमा तो कभी मांगी नहीं थी, मैंने जबरदस्ती मंगवाया है, अब फातिमा के सामने मैं जाके क्या कहूँगा। इधर फातिमा दरवाजे पर खड़ी है, दोनों की नजर मिलती है, अली का चेहरा नीचे झुका है, अली का सर नीचे झुका है। फातिमा कहती है ए हुजूर घबराइए मत, रास्ते में जो हुआ है वो आप बताएंगे या मैं बता दूं? क्या कि रास्ते में जो घटना हुआ, रास्ते में जो बात हुई वो आप बताएंगे या मैं बता दूं? अली कहते हैं ए फातिमा, अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है तारीफ कुछ ज्यादा हो जाए, इसलिए तुम ही बताओ। हम सब के घर में कोई ऐसी बीबी है जो दरवाजा बंद हो, शोहर बाजार जाए और बाजार की खबर बीबी दे दे? है, लेकिन फुटानी कितनी है, फरमाइश क्या है, दिन ब दिन फरमाइश बढ़ रहा है। लेकिन कभी ये ख्याल नहीं हुआ कि चलो अल्लाह का नाम लेके आज नमाज में खड़ी हो जाती हूँ, आज सजदा कर लेती हूँ, रब की तारीफ बयान कर लेती हूँ, ये कभी ख्याल नहीं आता। ऐ मेरे माँ बहनों, तुम भी कान खोल के सुनो, तुम भी फातिमा की कनीज बन जाओ तो यकीनन फातिमा तो ज़हरा कल बरोज़े महशर अपने साथ लेके तुम्हें भी जाएगी। ये दुनिया के ऐशो आराम कोई काम के नहीं है। हजरत का एक नात है, वो क्या है कि फर्श मखमल हश्र में फिर मिलेंगे। चार यार के कांधे पे जब चले जाएंगे तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा कि हम रब को सजदा करें या रब की तारीफ बयान करें, रब का हम्दो सना करें या अपने महबूब की तारीफ करें, कभी मौका नहीं मिलेगा। जो करना है अभी कर ले। फातिमा कहने लगी ऐ अली, रास्ते में जो वाकया गुजरा है वो आप बताएंगे कि मैं बता दूं? हजरत अली कहने लगे ऐ फातिमा तुम ही बता दो। फातिमा कहने लगी ऐ अली, मैं सब कुछ जानती हूँ, आपसे सवाल हुआ है, आपने उस साइल के सवाल पर वो अनार रब के नाम पर अता कर दिया है, उसे वो खैरात और सदका कर दिया है। इतने में हजरत सलमान फारसी साहबी रसूल है, मुल्क फारस के रहने वाले हैं। हजरत सलमान फारसी का बड़ा दर्दनाक वाकया है, लेकिन अभी मैं बयान नहीं करूंगा। हजरत सलमान फारसी का दर्दनाक वाकया है, मैं अभी बयान नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा आप याद दिला देंगे, इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। हजरत सलमान फारसी को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 अनार दिए और मेरे नबी फरमाते हैं ऐ सलमान जाओ अली तक पहुंचा दो। कहां पहुंचाओ? अली के पास। और अली जानते थे कि अल्लाह के नाम पर एक खर्च करो 10 मिलेगा। सलमान भी जानते थे कि अली जो है इल्म का दरवाजा है। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और अली कहते हैं ऐ लोगों, अगर मुझे किसी किस्म का सवाल तुम मुझसे करोगे उसका जवाब अली कुरान से दे देगा। अब सलमान फारसी के हाथ में 10 अनार मेरे नबी दे रहे हैं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ सलमान फारसी जाओ अली तक पहुंचा दो। हजरत सलमान फारसी जो है 10 अनार लेते हैं, झोले में लेते और चलना शुरू किए। रास्ते में एक अनार निकाल के अपने जेब में रख लिए। कहाँ रखे? एक अनार छुपा लिए। इसमें बहुत बड़ी राज है, जरा गौर से सुनिए।
एक अनार छुपा के अपने जेब में रख लिए। 10 अनार को लेकर हजरत सलमान फारसी चले थे और 9 अनार हाथ में रखते हैं, एक अनार जेब में रखते हैं और अली की बारगाह में पहुंच गए। हजरत अली के सामने 9 अनार पेश करते हैं। हजरत अली कहने लगे, ए सलमान ये अनार किसका है? हजरत सलमान कहने लगे, ए अली ये आपके लिए है, नबी ने फरमाया है, नबी ने अता किया है और आपको देने के लिए कहा है। ये 9 अनार नबी ने तुम्हें अता किया है। हजरत अली देखने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कह के ये मेरा नहीं हो सकता। हजरत सलमान से कहने लगे ये मेरा नहीं हो सकता। हजरत सलमान कहने लगे, अली क्या बात करते हैं, नबी ने मुझे दिया है और मेरे नबी फरमाते हैं, ए सलमान जाओ अली तक पहुंचा दो, ए अली ये अनार आप ही के नाम का है। हजरत अली कहने लगे, नहीं ये मेरा नहीं है, मैं मान नहीं सकता। हजरत सलमान कहने लगे, फिर क्यों नहीं मान सकते आप? बात क्या है, आप मानते क्यों नहीं है? हजरत अली कहने लगे, ए सलमान फारसी सुनो, मैंने सुना है, मैं ये जानता हूं कि अल्लाह की राह में 1 खर्च करो 10 देगा, तो मेरा ईमान कहता है कि जो अनार मैंने 1 सदका किया था उसके बदले में मुझे 10 मिलना चाहिए। ये 9 अनार है, ये मेरा नहीं हो सकता। हजरत सलमान फारसी जल्दी से जेब में हाथ डालते हैं और अली के हाथ में 10 अनार रख देते हैं। हजरत सलमान फारसी कहने लगे कि अली अब लीजिए 10 पूरा हो गया ना। हजरत अली कहने लगे, ए सलमान तुमने ऐसा क्यों किया? आप भी सोच रहे होंगे कि सलमान ने 1 अनार क्यों छुपाया। हजरत अली पूछते हैं, ए सलमान तुमने ऐसा क्यों किया, 1 अनार क्यों छुपाया? हजरत सलमान कहते हैं, हुजूर मैं जानना चाहता था कि अली का इल्म क्या है। कहिए ना सुभान अल्लाह। मैं आपके इल्म को देखता था कि 1 अनार मैंने इसलिए छुपाया था कि मैं आपके इल्म को जानना चाहता था। हजरत सलमान कहते हैं, ए अली मैं जान गया और मान भी गया कि सब कुछ इल्म आपके पास है। क्या छुपा है क्या जाहिर है वो आपके पास है। जब अली के इल्म का ये हाल है तो नबी के इल्म का क्या हाल होगा। इसलिए तो शायर कहते हैं कि खुदा की अजमत क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अजमत क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, और मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। खुदा